माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक एग्जाम को। आज हम डीवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले हम पढ़े थे। यू हैव स्टडीड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन क्लास 6। ओके, do you remember that an algebraic expression is a combination of constant and variables connected by means? Okay, do you know about algebraic expression? Algebraic expression is a combination of constant and variable conducted by means of four fundamental operation: addition, subtraction, multiplication and division. For instance, example 2x plus 3, 2x plus 3, 2x plus 3. Here 2 is constant, 2 is constant, x is variable and plus is algebraic operation. Okay, ऑपरेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीन चीजों को लेकर आता है, एक कांस्टेंट, दो है वेरिएबल्स एंड और क्या होता है अलजेब्रिक ऑपरेशन, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके student, write down the definition of algebraic expression. Okay, algebraic expression. Algebraic expressions. Okay, an algebraic expression is a combination of constant, comma and constant and variables and connected by what? Means of fundamental operation. Okay, means of fundamental operations like addition, subtraction, multiplication and division. Okay, and another example, 2ab plus 3bc minus 4ca. This is an algebraic expression. Okay, there is three terms, one term, second terms and third terms. टर्म के हिसाब से भी उसको डिवाइड करते हैं। सिंगल टर्म्स वाले को मोनोमियल, डबल टर्म्स वाले को बाइनोमियल एंड ट्रिपल टर्म वाले को ट्राइनोमियल एंड फोर्थ टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल। इस तरह आगे जाता है। ओके, अनदर एग्जांपल 8cx ओके इंटू 2bz। ओके, इस तरह भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, you may also know that in class number 6 the first point is what? And the parts of algebraic expression separated by क्या? The parts of
algebraic expression separated by the symbol addition or what? Subtraction. Okay, addition and subtraction are the term of algebraic expression. Okay, उसको और क्या कहें? Are the term of algebraic expression. Very good. And another key point. देखो, an algebraic expression having only one term is called monomial. बोले थे जिस algebraic expression का one term होता है उसको कहते हैं monomial. An algebraic expression having only one terms is known as or is called what? Is called monomials. Is called what? Monomials. Monomial, not monomials. Okay. Then another terms. Write down these terms. Okay. Another term. An algebraic expression having two terms. Two terms is called binomial. Okay. An algebraic expression having two terms, one term. Having two terms is called what? Is called binomials. Okay, terms. Okay, terms is called what? Binomials. An algebraic expression having three terms. Three terms वाले को क्या कहेंगे? देखो, an algebraic expression having three terms is called what? Is called trinomials. Is called trinomials. Okay. Okay. You know addition, subtraction of algebraic expression. Okay. In class number 6, you know the addition, subtraction of what? Algebraic expressions. Let us look at the following examples of browse of our memory. Okay. Example 1. Okay. करेंगे example 1. Example 1 क्वेश्चन है add 8x square plus 6y square 8x square plus 6y square plus 5. Okay, क्या plus
5 एंड क्या 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। देखो यही है एक टर्म, ये वाला एक टर्म्स, ये है 3 टर्म्स वाले, तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, और ये 2 टर्म्स उसको बाइनोमियल कहेंगे। ओके, हम उसको 2 तरह का मेथड में सॉल्व कर सकते हैं जो क्लास 6 में तुम पढ़े थे। एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड एंड अनदर क्या कॉलम मेथड। ओके, हम कॉलम मेथड में उसको सॉल्व करेंगे। देखो 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5 एंड x स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और तो कुछ कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे रख लेंगे और इधर साइन दे देंगे एडिशन का। ओके, अब क्या होगा, देखो एडिशन इधर से कर सकते हो। देखो 8 प्लस 2 हो गया 10x स्क्वायर, 8x स्क्वायर था और 2x स्क्वायर ऐड हो गया, तो 8 में से 2 ऐड होगा तो होगा 10। 6y स्क्वायर था और माइनस 3y स्क्वायर, देखो 6y स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3y स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6y स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3y स्क्वायर, देन आंसर इज 6 माइनस 3 होगा 3y स्क्वायर, बड़े नंबर का सिंबल रहेगा प्लस। ओके, यहाँ पे वही हुआ है 6y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो गया, तो होगा क्या 3 प्लस 3y स्क्वायर। ओके, और कुछ कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो प्लस 5। दिस इज द आंसर। ओके, देखो बेटा ये जो एडिशन है वो कॉलम मेथड। ओके, बट अब मैं उसको ही हॉरिजॉन्टल मेथड में करेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल मेथड, देखो क्वेश्चन है 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5, उसको सम करेंगे 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर के साथ। देखो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म की जगह पर लिखेंगे, 8x स्क्वायर और 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर था, 8x स्क्वायर और इधर देखो ब्रैकेट ओपन होकर आ रहा है प्लस और प्लस, तो प्लस हो रहा है तो प्लस 2x स्क्वायर। ओके, ये वाला एक हो गया, फिर प्लस करेंगे 6y स्क्वायर। अब देखो बेटा ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर है माइनस, प्लस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस ऑफ माइनस माइनस, तो माइनस 3y स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा प्लस 5, अब उसको सॉल्व करेंगे, 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होगा 10x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो होगा 3y स्क्वायर और प्लस 5। दिस इज द आंसर। ओके, आंसर नंबर 1 and answer number 2. This is called column method and another is called horizontal method. Okay. Example 2, subtract 6p square minus 13pq plus r from minus 12p square plus 5pq minus 14r. Okay, subtract this from this. Okay, solution by the what? एक पहला मेथड है बाय द कॉलम मेथड, सब्सट्रैक्टेड बाय द कॉलम मेथड या बाय कॉलम मेथड। बाय कॉलम मेथड। ओके, कॉलम मेथड में पहले इसको लिखेंगे क्योंकि यहां से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, माइनस 12 स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 14
minus 14r. Okay, minus 14r subtracted from 6p square minus 13pq plus r. Okay, then another step. First of all, you write down minus 12p square. Okay, minus 12p square. Then here the like terms of p square is 6p square. Okay, माइनस और प्लस, इसको यहाँ इसके पहले कुछ सिंबल नहीं है तो प्लस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस. ओके, माइनस 6p square. ओके, then another terms, another algebraic expression ऑपरेशन प्लस है, देन लिखेंगे p 5pq. ओके, 5pq, 5pq. फिर माइनस ऑफ माइनस होगा प्लस 13pq. ओके, फिर देखो ये वाला एक टर्म्स हो गया एंड माइनस का ऑपरेशन है, उसके बाद 14r, क्या 14r एंड इधर माइनस ऑफ प्लस माइनस r. ओके, नाउ राइट डाउन माइनस p स्क्वायर माइनस 12p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर. तो सेम सिंबल है तो दोनों ऐड हो जाएगा, 12 प्लस 6 हो गया 18 और सिंबल रहेगा माइनस का, प्लस देखो 5pq एंड 13pq दोनों सेम सिंबल है तो 13 प्लस 5 हो गया 18pq. ओके, देन माइनस 14r माइनस 5r माइनस r इज इक्वल टू 13r. ओके, सॉरी इधर माइनस में है तो वो वाला सिंबल माइनस में रहेगा. ओके, माइनस एंड माइनस आर माइनस 14r माइनस r इज इक्वल टू होगा 13r. ओके, सॉरी 15r. दिस इज द आंसर. क्योंकि ये वाला सिंबल है, ये जो ब्रैकेट में ब्रैकेट ना रहकर इधर डायरेक्ट माइनस 14r रहेगा, 14r माइनस r. ओके, इसको यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा. देखो बेटा ये वाला कॉलम मेथड नहीं है, ये वाला क्या हॉरिजॉन्टल मेथड है, गलती से कॉलम मेथड लिखा था. देखो ओके, अब हमको करना पड़ेगा कॉलम मेथड. कॉलम मेथड में पहले लिखना पड़ेगा, देखो माइनस 12p स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 14r, फिर माइनस होगा क्या 6p स्क्वायर माइनस 13pq एंड प्लस r. देखो जब भी हम माइनस करेंगे सिंबल बदलेगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, एंड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड प्लस है तो माइनस हो जाएगा. देखो आंसर क्या होगा, माइनस 12p स्क्वायर प्लस माइनस 6p स्क्वायर. ओके, 5pq प्लस 13pq प्लस 18pq माइनस 14 माइनस r माइनस 15r. आंसर इज माइनस 18p स्क्वायर प्लस 18pq माइनस 15r. दिस इज द आंसर. ओके, यही था कॉलम मेथड में, ये वाला को कहेंगे कॉलम मेथड, ये वाला को कहेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड. आंसर दोनों का बराबर ही होगा. ओके, देखो बेटा ये वाला था हॉरिजॉन्टल मेथड. हॉरिजॉन्टल मेथड में आंसर निकला 18p स्क्वायर माइनस 18pq
प्लस 18 पी क्यू माइनस 15 आर, कॉलम मेथड में भी माइनस 18 पी स्क्वायर प्लस 18 पी क्यू माइनस 15 आर। ओके, ये था दोनों मेथड का आंसर। ओके।